हम लोग शुरू करते हैं। सादर प्रणाम एवं नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ, एक्सप्लोरिंग जेंडर इक्वलिटी इन द न्यू नॉर्मल विषय पर विमेन स्टडी सेल उड़ान बसंत कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब कार्यशाला के चौथे दिन यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं सम्मानित जनों का समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। यह वेब कार्यशाला एक ऐसे समय आयोजित है जब समस्त विश्व इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से संकटग्रस्त है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यह देखना आवश्यक है कि इस न्यू नॉर्मल की प्रक्रिया में घर पर सुरक्षित रहते हुए कैसे हम जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करें। इन्हीं बातों पर हमारा मार्गदर्शन करने तथा हमारा जेंडर इक्वलिटी के वैधानिक पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अनु बैल मेहरा जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अनु मैम का प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम एवं समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आज के द्वितीय सत्र के हमारे वक्ता श्री जयंत भट्ट जी का भी समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अतिथियों के औपचारिक स्वागत के लिए हमारे महाविद्यालय के विमेन स्टडी सेल उड़ान के इंचार्ज डॉक्टर अंशु शुक्ला मैम से निवेदन करता हूं। डॉक्टर अंशु शुक्ला मैम। Thank you, Manoj. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, thank you. On behalf of Women Studies Cell VKM and on behalf of all the entire college and on behalf of my principal, I welcome to all the participants from various parts of country and even outside country who have made it to the workshop. I welcome both of our guests, Anu Behal ma'am and Jayant sir, for their talk on gender equalities. And as we all know, gender equalities and their social causes impact various issues related to the to Indian growth, economy, and everything. However, some thing is there where gender equality in India, which refers to health, education, economic, and political inequalities between men and women in India since long back. So, gender discrimination mostly in favor of men in many regimes, including the workplace. Discrimination affects many aspects in the lives of women, from career development and progress to mental health disorders. So, since last 3-4 days, we are discussing different aspects of gender inequality, like psychology, sociology, social work, and everything. Now, today in this session, we will be going to deal with the legal aspect of gender inequality in India. So, I formally welcome both of the speakers on behalf of our college and our Women's Study Cell. Thank you so much for being with us, and thank you, participants. One more request I want to make to the audience: please switch off your camera and please mute yourself. Thank you. Thank you, Manoj. Thank you, ma'am. इस सत्र के स्पीकर डॉक्टर अनु बैल मेहरा मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका लगभग 8 वर्षों का यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैम का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मेडिकल नेग्लिजेंस लॉ, विमेन रिलेटेड लॉ एंड क्रिमिनल लॉ।
She presented various papers in international and national seminars. She has published more than 15 articles and various book chapters. She practices the applicability of those laws in real life by creating awareness and promoting gender sensitization among students and college equally. She has been actively advocating the need of anti-sexual harassment committees in colleges and universities. She organized national and intra-moot court competition in universities. Uh, वी ऑल आर वेलकम मैम। मैम के आज के व्याख्यान का विषय है जेंडर इक्वालिटी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर अनु बहल मैम से निवेदन है कि आप हमारा इस विषय पर मार्गदर्शन करें। ओवर टू अनु बहल मैम। Good afternoon, one and all. Am I audible, sir? या मैम। Okay, sir. Sir, my name is Dr. Anubal Mehra, as already introduced by you. Basically, my topic is today's webinar is gender sensitization, and I thanks a lot to the VKM College and Dr. Anshu Tukla ma'am and the Uran department for calling us. And basically, now I start going to start our topic. Bangles are used as a synonyms of a woman. And it is also believed in India that women enjoyed an equal status as men in the Vedic period. Even, especially the education of the women held considerably significance, especially for the work of the Patanjali. Even we say that the Upanishad and Vedas have cited women as sages also, but the condition declined considerably afterward. Even अगर आप देखेंगे that historical practices such as sati, jauhar, parda pratha, devdasi, child marriage are the few traditions reflecting the gender imbalance in the Indian society. Basically, though these practices are largely defunct now, and but the gender equality is still manifested due to the domestic violence, trafficking, dowry death, female infanticide, sexual objectification and the violence and the sexual harassment in the workplace. Even अगर हम बात करते हैं gender equality की, तो not only in India, if we see so that ancient Greek and the Roman societies, women are treated inferior to the men. Even they are conceived for the procreation of the children has held be the only role of the women. Even under the common law for the England also, even the married women hardly have any rights. He had no rights in the property rights. Even you will consider the United States में women and children are considered as the men's possession, like property की तरह से उनको use किया जाता था. But globally, when United Nations has established a strong mandate or the gender justice, उसके ऊपर focus किया गया, and since from the inception of the United Nations, even in the 1946, a separate body भी आपकी बनाई गई for the work of the advancement of the women's also. Even इन्होंने काफी वर्क किया. Even the decade of the women, it is around 1976 से लेके 1985 तक का जो टाइम था उसको हम decade for women कहते हैं. And the 4 other women conferences भी आपकी वर्ल्ड वाइड हुई हैं जिन्होंने आपके women जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर जस्टिस है, इसको काफी हद तक उन्होंने जो है आप कह सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट किया है. इवन इन द 1995 यू विल सी कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ उसने भी काफी हद तक सपोर्ट किया कि नेशनल लेवल पे इसमें काम किया जाए. इवन आपका ह्यूमन राइट ट्रीटी हुई है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जिसको हम सीडर कहते हैं, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन, which was ratified by the 185 states, and there was one more treaty was there, optional protocol, and which was also ratified by the 90 states. And in दोनों में आप देखेंगे कि जो आपकी जेंडर इक्वालिटी है इसको प्रमोट किया गया. इवन 2005 में भी आपका जो वर्ल्ड समिट हुआ उसके अंदर आपके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को प्रमोट किया कि जो वर्ल्ड प्रोग्रेस वुमेन की प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए. इवन यूनिफैम एक सेपरेट एजेंसी बनाई गई यूएन के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विमेन इन द यूनाइटेड नेशन.
इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखते हैं तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी बनाया गया, जिसके अंदर आपकी पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह वीमेन का चेक किया जाता है. नाउ इफ वी कम टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, in India the principle of gender equality has enriched in the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इवन द प्रियम्बल ऑल्सो. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जस्टिस, इक्वालिटी, सोशली सबको मैनेज किया जाए, लिबर्टी सबके लिए हो. जेंडर जस्टिस के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. उसके अंदर जो मेन आपके आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 14, 15, 16, 39 एंड 42. ये आपके मेन आर्टिकल्स हैं. मैं आपको पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 14, जिसके बारे में लगभग सभी ने सुना होगा. दैट आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स द इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इट मीन्स कि अगर हम देखते हैं स्टेट के सामने, तो कोई भी वो दो सिटीजन्स के बेस पे, सिर्फ वो मैन है या विमेन है, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. वो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देगा. एंड सेम इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, और जो भी आपके किसी पर्सन के लिए आप कह सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, इक्वल ट्रीट भी करेगा और उन दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन भी देगा. अगर हम कहते हैं कि आईपीसी के अंदर आपकी कोई भी सेक्शन थेफ्ट के लिए उसको अगर प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो वही विमेन है या मैन है, दोनों को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन को मिलेगा, ऐसा नहीं है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है और स्टेट के पास फ्रीडम है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है आपके स्टेटस ऑफ विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए. इवन आर्टिकल 15 के अंदर आप देखेंगे क्लियरली बोला हुआ है कि प्रोहिबिट किया गया है एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम. इवन स्टेट जो है आपका मना नहीं करेगा, ये आपका विमेन के लिए करेगा, प्रोटेक्शन आपको प्रॉपर से देगा. इवन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में तो स्पेशली दे रखा है कि अगर स्टेट को लगता है कि सपोज रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर या कुछ चीजें स्पेशली स्टेट में नीड है, तो वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो. दोनों के लिए कर सकते हैं. आर्टिकल 14 में आपको एक चीज बताना भूल गई, जैसे हमने यानी कहा कि इक्वालिटी है. देयर वाज वन केस फॉर द रणधीर सिंह केस. आपका मेन एंड विमेन है, अगर दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों 8 आवर्स काम कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल वेजेस मिलेंगे. ये नहीं कि आपका जो एक पर्सन है उसको सैलरी मिलेगा ज्यादा और एक को मिलेगा कम. 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, दोनों सेम पोजीशन पे मिलेंगे. अगर क्लासिफिकेशन होगा तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा. सपोज ये कह सकते हैं कि किसी पर्सन को एक्सपीरियंस ज्यादा है. सपोज अगर हम कहते हैं किसी कॉलेजेस के अंदर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है किसी लेवल के ऊपर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर पे है, तो अगर जो ग्रेड है वो मिलेगा. ये नहीं कि वो मेल है तो उसको ज्यादा मिलेगा या फीमेल है उसको कम मिलेगा. ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारा जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना किया गया है करने के लिए. इवन आर्टिकल 16 के अंदर प्रोविजन दिया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफिस. अगर आप ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप क्वालिफाई करेंगे. उसमें ऐसा नहीं है कि मेल्स का परसेंटेज ज्यादा होगा या फीमेल्स का होगा. जो भी आप एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जो भी जना गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स आप लोग देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करें तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड. ये नहीं है कि आपके जो है हमने मेल्स को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन यहाँ पर नहीं है. क्लियरली यहाँ पे भी मेंशन है कि नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल or discriminated against in respect of any employment or office under the state. इसके अलावा हमारे आर्टिकल 39 में दे रखा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, कि सिक्योरिंग द इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वीमेन एंड दैट बोथ मेन एंड वीमेन हैव द राइट टू इक्वल पे. आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन मोर केस, नरगिस मिर्जा केस. इट्स अ वेरी फेमस केस. इस केस में क्या था कि जब आपका मैटरनिटी बेनिफिट, आपकी जो विमेन है वो मैरिज करके फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद उसको उस ग्राउंड पे टर्मिनेट किया जाता था कि वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो दैट्स व्हाई शी कैन नॉट वर्क फॉर द एयर इंडिया. तो ये आपका ये माना गया कि मदरहुड इज अ आपका बेसिक राइट है. इसके अंदर आपको डिनाई नहीं कर सकती से आपको जो है ऑफिस के अंदर कि आप वर्क नहीं करे. तो ये आपका जो रूल था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हटाया भी गया आपका कि इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज टोटली अगेंस्ट द विमेन्स, कि आप जो मदरहुड है दैट इज द बेसिक राइट है, नेचुरल राइट है, उसके अगेंस्ट आप किसी पर्सन को सिर्फ इस बेस पे आप उसको हटा रहे हैं कि शी इज बिकम प्रेग्नेंट. इवन हमारे इसके अलावा आर्टिकल 42 के अंदर आप देखेंगे कि सिक्योर कर रहे हैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड द
मैटरनिटी लीव आपने देखा है कि जनरली मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं। इवन हमारे खाली कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है ही है, आपका जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। इसके अलावा नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर वेरियस लॉज बने हैं जिसके अंदर आपका इक्वल राइट दिया गया है, कोशिश की गई है, या एटलीस्ट ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जो विमेन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो या वो अपने आप को इंफीरियर नहीं समझें। अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो देयर वाज अ सती प्रथा एंड नाउ इन 1829 एबोलिशन ऑफ सती प्रथा वाज देयर, एक्ट पास हुआ जिसके अंदर आपका जो सती प्रथा है उसको बंद किया गया। इवन विडो रीमैरिज जो था उसको लीगल बनाया गया, जबकि अगर हम पहले के टाइम में देखते हैं दैट वाज नॉट लीगल। फीमेल इन्फेटिसाइड को आपका बैन किया गया। इवन जो आपके विमेन को जो वोट देने का राइट था मद्रास प्रोविनेंस के अंदर आपका 1921 के अंदर वो भी दिया गया। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, आपने सुना है बाल विवाह, इसके ऊपर काफी सारे सीरियल्स भी आप लोग देखते हैं, काफी कुछ आता भी रहता है। तो इसके अंदर ये भी प्रोविजन दिया गया कि आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लेकर आए। हमारा एक और एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, हमारे यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशली विमेन्स को भी मेन को भी दोनों भी को दे रखे हैं कि अगर आप मैरिज करते हैं तो आप मोनोगमी को फॉलो करने की बात करते हैं, बाइगमी को प्रमोट नहीं करते हैं। मतलब अगर आपका एक स्पाउस जिंदा है तो आप खाली एक को ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने दूसरी को भी करा तीसरी को भी करा, ऐसे मैरिज को प्रमोट नहीं किया जाता है। इसके अलावा सप्रेशन ऑफ जो आपका इमोरल ट्रैफिकिंग है विमेन्स एंड गर्ल्स का, उसको भी आप इसे सप्रेस करने के लिए एक्ट पास किया गया 1956 के अंदर। आपकी डॉरी डेथ काफी होती थी, तो इसको भी डॉरी जो है एक बहुत ही बुरी प्रथा मान के इसके लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसको भी पास किया गया कि अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा। इसके अलावा आपके क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। आपको मालूम ही है जब आपका निर्भया का केस हुआ था कुछ समय पहले, तो उसके बाद सभी को मालूम है कि आपकी बंद कमेटी के अंदर काफी कुछ आपका नया कुछ इंट्रोड्यूस किया गया और काफी सारे ऐसे प्रोविजंस लेके आएगा जिससे आपका कुछ भी अगर विमेंस को कहा जाता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा या उनके लिए आपके ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे काफी सारे आपके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, पेंशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट, काफी कुछ है जिसके अंदर आपके विमेन को प्रोटेक्शन की बात दी गई है। इसके अलावा आपका आईपीसी के अंदर 304B सेक्शन को लेकर आए कि इवन इसके अंदर पनिशमेंट है कि अगर 7 साल से पहले किसी लड़की को अगर शादी के 7 साल हुए हैं उससे पहले उसका भी नहीं हुए हैं उससे पहले उसको जला दिया गया या उसकी डेथ हुई है तो प्रॉपर से चेकिंग होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉरी की वजह से उसकी डेथ की गई है। इवन सेक्शन 498 को लेकर है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज बहुत समय से रेज हो रहे थे उसके लिए भी लोगों को प्रोटेक्शन मिले। इवन आपका सेक्शन 113A भी आपका एविडेंस एक्ट के अंदर ऐड किया गया। और इस तरह से आपके बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो आपके लाए गए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि लेडीज को जनरली अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास कितने राइट्स हैं। सेम राइट्स हैं जितने मेन के पास हैं उतने वेमेन के पास भी हैं। इवन आपके अगर डाइवोर्स का प्रोविजन अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर तो फीमेल्स को एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं कि वो भी वो केस फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर मेन से ज्यादा राइट वहां पे विमेन्स को दे रखे हैं। प्रॉब्लम अवेयरनेस की इंडिया में ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो मुझे लगता है कि जितने विमेन्स के पास राइट है उनको उतना यूज नहीं करते हैं। इवन अब जैसे सर ने कहा कि मेरे दूसरे टॉपिक आपका है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एक्ट जो लाया गया, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होते थे, पर लोगों में जो अवेयरनेस आई, विशाखा का केस हुआ, विशाखा वर्सेस राजस्थान का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास किया। आफ्टर दैट तो इसको ये माना गया कि आर्टिकल 21 के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि बस जस्ट एग्जिस्ट करना, लाइक एनिमल की तरह एग्जिस्ट करना विद डिग्निटी विद लिबर्टी, उसको प्रमोट किया गया है हमारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कहा कि जिंदगी जीने का नाम है, सिर्फ हम सांसें लेते रहेंगे। उसमें कहा है कि डिग्निटी अगर मेन की है, विमेन की है, जिसे वो अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस हुई, इस तरह के क्वेश्चंस को रेज किया गया। क्योंकि अगर सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी वर्क प्लेस पे होता है तो बेसिकली वो एक इनसिक्योर और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे विमेन्स काम नहीं कर सकते। इवन उनका जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क है वो डिस्करेज होगा, इवन उनको एडवर्सली इफेक्ट होगा। और अगर हम देखें तो विमेन्स जो है वो
उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपकी सोसाइटी के लिए जितने मैन है। कोई भी अगर हम देखते हैं परिवार को देखें तो मैन एंड वीमेन दोनों की जरूरत है। सेम अगर हम ऑफिस के अंदर देखें तो दोनों का वर्क अपनी जगह है। उसमें अगर सिर्फ फीमेल है इस बेस पे उसको प्रमोशन नहीं देना या उसको डिस्क्रिमिनेट करना या उसको सेक्सुअल हरासमेंट की तरह से करना या उसको इस तरह से फेवर करना कि अगर आप ये चीजें नहीं करोगे मेरे फेवर में तो आपको एम्प्लॉयमेंट से हटाया जा सकता है या आपका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, दीज आर टोटली इलीगल। तो इसीलिए आपका सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आपका जो है वो जब गाइडलाइंस आई आपकी विशाखा केस के बाद, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका, जिसमें आपका जो सूडो का मैंने आपको बताया, सीडो का जो आपका कन्वेंशन हुआ था उसको भी प्रमोट करते हुए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आपका ये पास किया गया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। आपके इसके वर्ड के अंदर ही देखिए, इसके अंदर 3 वर्ड दिए गए हैं। ये आपका विमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट भी कर रहा है, आपका प्रोहिबिट भी कर रहा है इस तरह के एक्शंस को सेक्सुअल हरासमेंट के, और साथ साथ आपका रिड्रेसल, अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको रिड्रेसल भी दे रहा है। बेसिकली जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और द incidental thereto. Even basically आपका the act define the sexual harassment as unwelcome acts or behavior, namely physical contact or advances or demand or request of the sexual favor, making sexual colorable remarks, showing pornography or any other physical, verbal or the non-verbal conduct of the sexual nature. It will be covered under your this sexual harassment act. इवन आपको मैंने बताया इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसके लिए आपको बताते हैं कि कमेटीज के लिए है जनरली आपके जितने भी ऑफिस के अंदर जहां पे आपके 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं मीन्स, तो वहां पे क्या है एम्प्लॉय हैं, तो वहां पे आपकी इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वहां पे कंप्लेन कमेटी आपकी बनाई जाएगी। इवन जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफिसेज हैं, इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहां पे आपकी आईसीसी इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाई जाएगी। और अगर आपके 10 से कम मेंबर हैं इन दैट केस आपका जो है लोकल कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपकी बनाई जाएगी। सपोज आपके जो डोमेस्टिक आपके घर में काम करने वाली लेडी है, सपोज उनको लगता है कि कोई कंप्लेन करनी है ना, देन दे विल मूव टू द लोकल कमेटी, वो वहां चले जाएंगे, वहां पे भी वो जाके कंप्लेन करेंगे। और इस पर्टिकुलर कमेटी के पास उतनी ही पावर है, उसी तरह से पावर है इंक्वायरी करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, जैसे आपके एक सिविल कोर्ट के पास होती है। जैसे मैं भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो है सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ, तो वहां पे हमारे सामने भी काफी कुछ इस तरह की कोई मैटर कभी आया है तो हमने प्रॉपर से उसको इन्वेस्टिगेट किया है और दोनों की बात सुनी जाती है। फर्स्ट हमारा जो स्टेप रहता है उसके अंदर वो ये रहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कराएं अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप रिटर्न में कंप्लेन दीजिए, प्रॉपर से इन्वेस्टिगेशन होगा आपका, उसके ऊपर आपके दोनों को नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंगली आपको किया जाएगा। इसके लिए पर कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपकी जो भी कंप्लेन है वो विद इन 3 मंथ्स आप फाइल करें। और सपोज अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे सीरीज में एक्ट्स हुए हैं तो जो भी आपके साथ लास्ट घटना घटी है उसके अंदर 3 महीने के अंदर आप कंप्लेन फाइल करें। पर अगर आप सपोज 3 महीने से ऊपर समय हो भी जाता है तो अगर आपको कुछ दिनों की अगर आपको लगता है जस्टिफाइड है तो वो आप चल जाता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वही लेडी जो है वो करेगी, उसके बिहाफ पे उसकी फ्रेंड, उसका लीगल हायर, उसकी फैमिली का कोई मेंबर भी कर सकता है अगर वो फिजिकली या मेंटली आपको लगता है कि इसके बाद इनकेपेबल है। तो आपकी जो कमेटी है उसके बाद इंक्वायरी करेगी, इनिशिएट करेगी इंक्वायरी स्टेप बाय स्टेप, रिस्पोंडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया जाएगा। कोई भी आपकी जो टर्म्स हैं, प्राइमा फेसाई जितने भी एविडेंसेस हैं उनको आपको देखा जाएगा। आपकी जो भी कमेटी बनती है जनरली उसके पास एक ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा, उसको 90 डेज के अंदर 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो 90 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी पूरी करे। अगर वो 90 दिन से ऊपर वो लगा रही है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इस दौरान उसके पास एक और पावर है कि जैसे आपका जो भी विक्टिम है, जो भी पर्सन है, नेचुरली बात है कि उसके साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ है तो वो नहीं आना चाहेगा कि मैं ऑफिस के अंदर आऊं या उसको अजीब लगेगा, तो उसको छुट्टी प्रोवाइड की जाती है 3 महीने की, या उसको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, उसको छुट्टी दी जाता है अपार्ट फ्रॉम जो उसको लीव ग्रांट हो रखी है उसके ऑफिस के अंदर, उससे अपार्ट। उसके अलावा उसको कहीं और कोई और ऑफिस है तो वहां भी उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको भी प्रॉपर से प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इंक्वायरी है तो वो
वेरिफिकेशन करके ऐसा नहीं है कि उसको कंपेल है कि नहीं आपको भी ऑफिस आना है, और इस तरह से जो है गाइडेंस उसके लिए भी दी गई है। और जनरली आप देखेंगे कि जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी आपके यूजीसी की आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपकी आईसीसी की जो कमेटी बनाई जाती है, तो उसके अब जो है उनका नोटिफिकेशन, उनका बैनर जो है वो अपने रिसेप्शन पे और अपनी जगह पे, कई जगह पे लगा के रखते हैं कि सपोज किसी लड़की को या किसी लेडी को कोई भी परेशानी है, देन शी कैन इन्फॉर्म कि एटलीस्ट जो है ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की गाइडलाइंस भी आपकी इसके अंदर दे रखी हैं कि मतलब लोगों को मालूम कैसे चलेगा कि यहाँ पे आईसीसी बनी हुई है। किसी को ऐसे नहीं मालूम चलेगा तो ऑलरेडी डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आप इस तरह के बैनर भी लगाएंगे कि आप जो है मिसकंडक्ट आपके साथ हो रखा है। और हाँ, अगर इसके अंदर जब आपकी इंक्वायरी के अंदर अगर सपोज आपका मालूम चलता है कि जो पर्सन है उसने मिसकंडक्ट किया है सच में इंक्वायरी के बाद, तो एलिगेशन अगर प्रूव हो जाते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी है उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, जो भी उनके सर्विस रूल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली देगा। अगर नहीं दे रखा तो रूल नंबर 9 है उसके अकॉर्डिंगली करेगा, और जो भी उसको एक्ट करना है वो रिकमेंडेशन की 90 डेज के अंदर वो 60 डेज के अंदर आपका दे देता है। पर आपका अगर फॉल्स अगर किसी ने एलिगेशंस लगाए हैं किसी लेडी से विक्टिम ने, तो उसके लिए भी आपके दे रखे हैं कि उसके भी अगेंस्ट किया जाएगा। इवन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उस आईसीसी के वर्क से, आईसीसी ने जाकर कंप्लेन आपकी सॉर्ट आउट करी है, तो आप 90 डेज के अंदर अपील भी फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फाइल नहीं करते हैं। इसके अंदर पूरी तरह से जिस समय ये कमेटी काम करती है तो उस एग्रीव्ड पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि वो कौन लेडी है, किसके बारे में उसमें विटनेसेस हैं, क्या इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि इसको लेडी को मेंटली इसको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और इसके अंदर ये भी है कि जब बाद में आपका पनिशमेंट दिया जाता है उस पर्सन को गिल्टी प्रूव होने पे, तो उसको मॉनिटरी भी लगाया जाता है उसका कि उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा या इस तरह की चीजें हैं। साथ में कई बार उससे इस तरह से भी लिया जाता है कि जो कॉम्पनसेशन उस लेडी को वो प्रॉपर से दे सकें। इवन जो आपके एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास एक और जिम्मेदारी है इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 19 और 20 के अंदर, जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस करेंगे ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जैसे मैम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करा है अपने यहाँ पर ये चीज पर्टिकुलर की लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए आप जो है प्रोग्राम्स अवेयर करने के लिए भी आपके वर्क किया जाए। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका कंप्लाइज नहीं करता है इस एक्ट की, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाती है कि वो भी जो है प्रॉपर से इसके अंदर काम करेगा, मतलब उसको भी इसमें कंपल्शन है कि वो आईसीसी के लिए काम करेगा। सर ये तो आपका इन दोनों के ऊपर एक बेसिक चीजें हैं। कोई और जना कुछ पूछना चाहता है तो पूछ भी सकते हैं इसके बाद। मैम हेलो। जी जी मैम, जी जी सर बिल्कुल। हाँ सर। अंशु मैम, क्वेश्चन तो नहीं आए हैं किस पे? डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई प्रश्न है किसी का इससे संबंधित तो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स और वी कैन go ahead with the next session. One question is there. एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी 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 शशिकेश जी, बिल्कुल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, बहुत ही अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया। मैम मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि अगर एक विमेन के साथ कोई इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट होता है उस प्लेस पे जो स्पेशली जो है विमेन्स के लिए ही रिजर्व हो या डोमिनेटेड, वहाँ केवल जो वर्किंग क्लास हो वो विमेन ही हो, तो उसके लिए भी कोई इस तरह का प्रोविजन है? किसके लिए सर? जैसे कि किसी महिला के साथ हरासमेंट होता है उसके वर्किंग प्लेस पे, वो वर्क प्लेस ऐसा हो जो केवल मतलब कि विमेन्स से क्या उसको कह सकते हैं कि विमेन्स के लिए ही रिजर्व। हाँ सर, अगर आपका ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन कहें तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आपके स्पेशली जेंडर जो है विमेन को प्रोटेक्ट करने की बात किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन देखते हैं तो मेल एंड वीमेन दोनों का प्रोटेक्शन है, दोनों के पास इक्वल राइट है। बट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, दिस इज स्पेशली फॉर द विमेन ऑल्सो, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रिविलेज है टोटली बेसिकली आपका जो है वो विमेन के लिए ही, विमेन को ही प्रोटेक्शन दे रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट आपका विमेन एक्ट ये आपका विमेन को ही दे रहा है।
अगर आपको मिलते हैं तो आप वो उसी के अधीन है, उसके लिए अलग से कोई प्रावधान आपके आईपीसी को भी दे रखे हैं, आप सेक्शन 509 के अंदर कोई ऐसा कमेंट करता है के लिए आपके तो उसके आपके आईपीसी मूव कर सकते हैं उसके अंदर। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की जगह पे आप आईपीसी के प्रोविजन के अंदर आप जो है मूव करेंगे। जेंडर आइडेंटिटी एक्ट आपका ऑलरेडी है, तो उनसे चीजें हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए नहीं है, वहां पे उनके लिए प्रोविजन आप उसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, इट इज डिस्टर्बिंग द होल थिंग। और थैंक यू मैम। अनु मैम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन from Manisha Sharma. What can be done if the person is in trauma and report after many years? अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है और वो ट्रॉमा में थे, जो बहुत सालों बाद अगर कोई रिपोर्ट करता है, तो व्हाट कैन बी डन इन दैट सिचुएशन? मैम एक्चुअली मैंने अभी आपको कहा कि अगर मेंटली या फिजिकली वो लेडी नहीं कर सकती है, तो उसके केस में उसके बिहाफ पे उसका जो भी गार्जियन है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके जो भी आपका लीगल हायर है, दे कैन फाइल द कंप्लेंट। ऐसा नहीं है कि वो वही लेडी ही करेगी। सपोज लेडी मेंटली कंडीशन में ही नहीं है या फिजिकली कंडीशन में ही नहीं है कि वो कंप्लेन करे, तो उस केस में वो जो उसकी बिहाफ उसकी फैमिली मेंबर भी कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही लेडी ही करेगी। मैम अगर वो उस टाइम पे नहीं करते हैं केस, तो क्या बाद में कोई ग्राउंड रह जाता है अगर वो करें? उसको अपना प्रॉपर से रीजनिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास आईपीसी के अंदर नंबर आपके जो है आपको प्रोविजन दे दिए गए हैं, जो आपका अमेंडमेंट किया गया है, तो वो उसके थ्रू आराम से मूव कर सकते हैं। मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके जस्टिफाई रीजन हुआ कि हमने इतने समय तक कोशिश जो नहीं कर पाए, उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन आपको जस्टिफाई करना है कोर्ट के सामने कि हम नहीं कर पाए। पर्सन आपका इतना ट्रॉमा में था कि वो बता ही नहीं पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया, कोमा में चला गया, ऐसा नहीं। वन मोर क्वेश्चन, एक स्वर्ण सुमन जी ने पूछा है कि भारत में यौन हिंसा को लेकर मजबूत कानून है, परंतु न्यायपालिका में पुरुषों का वर्चस्व है और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी अररिया में रेप पीड़िता को ही जज ने उनसे सवाल पूछने पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में एक लड़की ने आरोप लगाए थे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं कहाँ जाएं, क्या करें? सर ऐसा मैम ऐसा नहीं है, तभी मैंने कहा कि थोड़ा सा अवेयरनेस आपको अपने आप ही लड़की आनी पड़ेगी। अगर ये एक्ट भी आया है तो विमेंस की अवेयरनेस से ही आया है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि विमेन ने ऐसा किया और उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उन विमेंस ने अपनी अवेयरनेस को करते हुए सब चीजों क्वेश्चन को लेकर आए मीडिया के सामने। लोग कहना नहीं चाहते, लोग छुपते हैं, कहते ही नहीं है उस बात को। जब तक आप कहेंगे नहीं कोई जानेगा नहीं। आप उस चीज को उठाइए, उन मुद्दों का आपका एनजीओ आपका साथ देगा, पीआईआर आपका दे रखा है, विमेंस के पास डायरेक्ट राइट भी है वो मूव करने का। सेक्शन 32 आपके आर्टिकल 32 के अंदर वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकती है। 26 के अंदर आपके हाई कोर्ट डायरेक्टली भी मूव कर सकती हैं, अगर उनको लगता है फंडामेंटल राइट का उनका वायलेशन हुआ है या बीच में उनको प्रॉब्लम होगा करने में। ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर आपके दोनों प्रोविजन आपके विमेंस को दिए गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। मैंने कहा कि आईसीसी के अंदर भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो विमेन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं कि किस लेडी के लिए चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि विमेन जनरली अपनी बात कहते ही नहीं है। जैसे अभी आपका लास्ट ईयर आपका मीटू का चला था, तो उन्होंने बहुत समय के बाद बोला कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो घटना से तो नहीं कहते हैं विमेंस की जो एक, वही मैंने कहा ना, जो चोरियों से उनको आपका सोनिया मान लिया गया है। लेडीज को ये बोला जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, तो आप कहेंगे नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। विमेंस को अपने लिए, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि हमको खुद एम्पावर होना पड़ेगा, हमारे लिए हमें अपने कदम खुद गिराने पड़ेंगे, थोड़ा हमें करना पड़ेगा। एक मनीषा शर्मा का क्वेश्चन है मैम, व्हाट if she is not having support as the abuse is mainly from family members? सर उसके लिए आपके आईपीसी के अंदर है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर तो आपका वर्क प्लेस के लिए है। आईपीसी के अंदर आपकी जो नई धाराएं बनाई गई हैं, सेक्शन 354 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। सर अगर आपको लगता है फैमिली मेंबर की कर रहा है, अनफेवर डिमांड कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं पर क्या है, या कुछ भी मूवीज वगैरह दिखा के आपको इस तरह से हरास किया जा रहा है, इट्स लाइक एन हरासमेंट कि आप कंपेयर करके उसको देख रहे हैं, देन यू कैन आल्सो फाइल द कंप्लेंट। विमेन सेल के अंदर आप कर सकते हैं। लोकल कमेटीज भी जो है आपकी, मैंने बताया कि लोकल कमेटीज भी आपकी बनाई गई। सपोज आपका जैसे मेड वगैरह होती हैं, उनको भी आपके फैमिली में जो आती हैं,
वो भी वहां जाके कर सकती हैं, और IPC के अंदर आपके जो फैमिली मेंबर है वो भी कर सकते हैं। सपोर्ट नहीं होता, पर हमें अपने लिए कुछ कहना पड़ेगा। जब कोई भी आपका अगर रेप का केस हुआ है, तो जब तक वो लड़की बताएगी नहीं कि रेप हुआ है, तब तक आप उसका केस कैसे फाइल करेंगे? उसको एटलीस्ट अपने लिए तो कहना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आप देखेंगे जो रेप के केसेस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बाहर होता है, आप देखेंगे फैमिली मेंबर्स में से ही काफी ज्यादा ऐसा हो रहा है। अभी जो आपके ड्यूरिंग कोविड-19 हम देखते हैं कि ये जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, अभी रिपोर्ट में आया, हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदू में आया था, मैंने देखा कि आपके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर गए हैं, चाइल्ड अब्यूज भी कर गए हैं। तो नेचुरली बात है कि वो आपकी फैमिली के अंदर ही हुए हैं, वो आपके जो केसेस हुए हैं वो फैमिली के अंदर ही हुए हैं, आपके चाइल्ड अब्यूज के केसेस या आपके हैरेसमेंट के जो केस, जो भी आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, वो घर के अंदर ही हुए हैं। बस ये है कि आप कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर मैटर करता है। जी जी, निश्चित रूप से मैम। तो थैंक यू वेरी मच मैम। मनोज जी, बस एक चीज, पार्टिसिपेंट्स आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली स्विच ऑफ योर कैमरा। आप अब मुझे नाम लेके बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज नॉट लुकिंग डिसेंट। काइंडली स्विच ऑफ योर कैमरा। वैशाली सिंह, सूरज सिंह, भारती सेजल, प्लीज अपने कैमरे ऑफ कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। निश्चित रूप से आप अपने सारगर्भित व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित किया तथा वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हैं, इन सभी से संबंधित हमारा दिशा निर्देश कर लाभान्वित किया। निश्चित रूप से हमको पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम पार्टिसिपेंट्स और हम सभी को इसका लाभ हुआ है। इसके लिए प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम, उड़ान सेल के इंचार्ज डॉक्टर अंशु शुक्ला मैम तथा समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अब कार्यक्रम के दूसरे चरण में आगे बढ़ते हुए आज हमारे इस वेब मंच पर हमसे जुड़े हैं श्री जयंत भट्ट सर। आपका समस्त महाविद्यालय परिवार, प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम एवं उड़ान सेल के इंचार्ज डॉक्टर अंशु शुक्ला मैम की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री जयंत भट्ट सर एक सम्मानित अधिवक्ता हैं। आप इंडिपेंडेंट लॉयर हैं दिल्ली में। he holds dual master of law from Newark University, USA and National University of Singapore, and is a member of prestigious Supreme Court Bar Association and Delhi High Court Bar Association. His office caters to varied clients comprising of governmental and non-governmental bodies, multinational financial institutions and individuals in any area of matters. Mr. Bhatt, besides being a practicing advocate, is also a prolific speaker at various platforms and is an individual with firm belief in greater societal good. He has a keen interest in teaching and monitoring young minds and is an advisory board member to various organizations. हम समस्त महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और now not taking much time, I would like to invite today's speaker Sri Jayant Bhatt sir kindly deliver his lecture. The theme of his today's lecture is gender equality, justice in law and practice. Please sir. Sir, kindly unmute your mic. जी, अभी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। इससे पहले मैं अपना सत्र शुरू करूं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है सबसे। मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं या जो लोग मुझे देख पा रहे हैं वो अपने अपने कृपया माइक ऑन कर सके ताकि मैं अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकूं। मेरी एक छोटी दरखास्त है, जो लोग लेटे हैं वो जाग जाएं, जो जागे हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा आपको संबोधित करने के लिए, और उस आधे घंटे के अंदर आपके पक्ष में आपके हित की बातें मुझे करनी है, आप तक कानून की बात पहुंचानी है, उस चीज को उजागर करना है जिस चीज के लिए मैं इस मंच तक आज आपसे जुड़ने के लिए आया हूं। तो वसंत कन्या महाविद्यालय को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मंच प्रदान किया, और साथ ही सिंह सर, जैसे मैंने एक दरखास्त की कि जो लोग के वीडियो ऑफ उनको ऑन कर दें। मैं चाहता हूँ कि ऑन हो वीडियो, जितने लोग कर सकते हैं, अगर फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं,
ताकि मैं आपको देख सकूं। नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से तो आमूमन मैं वैसे भी अपने बात कर लेता हूँ, लेकिन मुद्दा ये कि आप लोगों की अगर शक्ल मेरे सामने रहेगी तो एक इंटरैक्टिव सेशन बनता है। और साथ ही दूसरी चीज ये कि एक चैट बॉक्स यहाँ दिया गया है। इस चैट बॉक्स में आपके जो भी सवाल जवाब, आपकी क्वेरीज हो, उसको प्लीज डालें, क्योंकि ये सेशन मेरे लिए नहीं है, ये सेशन आप लोगों के लिए है, छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए है। और अगर आप मेरी बात आप तक पहुंचे तो मैं समझता हूँ कि जो अगले 30 मिनट हम साथ में बिताएंगे वो कारगर साबित हो सकते हैं। आई थिंक ऑन दिस नोट आई स्टार्ट विद माई सेशन, क्योंकि जब मैंने पोस्टर देखा, अंशु शुक्ला मैम ने जब मुझे पोस्टर दिखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया उसको देख के, क्योंकि वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही थी और इकलौता मेल कैंडिडेट में मेरी शक्ल आई। तो मुझे लगा चलिए मेल कैंडिडेट को तो शायद मैं टैकल कर भी लूँ, पर दूसरी बात ये कि मैं फौजदारी का वकील हूँ, मैं क्रिमिनल वकील हूँ। तो मुझे लगा कि एक तो वैसे ही पुरुष बड़े बदनाम होते हैं, ऊपर से अगर मैं एक कन्या महाविद्यालय में जाके लोगों को संबोधित करूं और उस संबोधन में ये पता चले कि ये क्रिमिनल वकील है तो बड़ी भद्द उड़ सकती है मेरी। पर मैंने कहा कि इस बात पे शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेयर अर्ज करता हूँ अपने डिफेंस में, जो कुछ इस तरीके से है कि मुझे सुनिए, मुझे नजरअंदाज न कीजिए साहब, मुझे सुनिए, मुझे नजरअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे। तो चूंकि मैं वकील हूँ, एक पुरुष हूँ और वसंत कन्या महाविद्यालय में आप सबको संबोधित कर रहा हूँ, तो पहला मेरा डिफेंस ये है कि आप मुझे पहले से प्लीज ना करें, मेरी बात को सुन लें कि मुझे क्या कहना है जेंडर इक्वालिटी पे, कानून प्रणाली के हिस्से में मुझे क्या रखना है और किस किस चीज का संबोधन करके हमें उस पर आज सवाल जवाब करने, उस पर तर्क करना है, उस पर विचार विमर्श करना है। और कोशिश यह है कि आपकी जो सूझबूझ है उसको मैं थोड़ा सा चोट पहुंचाऊं, ताकि जो आपकी एक अपनी जो सोच है जॉली एलएलबी को लेके कि भाई अगर वकील ने काला कोट पहना है तो जॉली एलएलबी होता है और कानून एक तरीके से काम करता है, उस सोच को थोड़ा सा बदलना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो कानून का जो पूरी जो प्रणाली है, पहले तो उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। वो 3 भागों में विभाजित है। उसको कहते हैं ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों ने उन तीनों के आमतौर पर नाम सुने होंगे। आप क्योंकि वाराणसी में है तो वाराणसी का अपना एक जिला और सत्र न्यायालय होगा जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं। उसके ऊपर जब भी कभी अपील जाती है मैटर्स में, स्पेशली अगर मैं क्रिमिनल मैटर्स की बात करूं, तो उसको हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। आप लोग का हाई कोर्ट इलाहाबाद में बैठता है, बेंच लखनऊ में बैठती है यूपी की। और उसके बाद देश का जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि दिल्ली में जिसकी पीठ है, जो दिल्ली में विकसित है। तो ये तो हमारे 3 क्राइटेरिया हो गए। और साथ ही में एक जो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, जस्टिस एंड लॉ, ये एक बहुत अपने आप में एक गहन मुद्दा है। क्योंकि जब मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करता हूं तो अमूमन मैं ऐसी किसी महिला को नहीं जानता, चाहे अपने परिवार के अंदर या अपने सामाजिक दायरों में, जिनके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई ईवटीजिंग का हादसा, कोई ना कोई शोषण की बात, कोई ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल, फिजिकल या कोई ना कोई अब्यूज हो किसी ना किसी अपने जिंदगी के पड़ाव पे। तो जितनी मेरी महिला मित्र हैं या मेरी महिला कोलीग्स हैं या मेरे जितने संबंधी हैं, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो ये चीजें कहीं ना कहीं उभर के आती हैं। और क्योंकि ये बात बहुत एक गहन मुद्दा है, इस पे एक और मैं एक शेयर अर्ज करूंगा, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एक सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर अगर आप क्षमा लफ्ज को समझते हैं तो जो दिए की लॉ होती है उसको उर्दू में क्षमा कहा जाता है। तो जेंडर इक्वालिटी का से मिलता जुलता ये शेर है जो कहता है कि ऐ क्षमा तुझ पे ये रात भारी है जिस तरह, ऐ क्षमा तुझ पे ये रात भारी है जिस तरह, तमाम उम्र मैंने गुजारी है उस तरह। तो जो भी हमारी देश की महिलाएं हैं, जो स्त्रीगण है हमारा, कहीं ना कहीं मैं सुनता हूँ कि किसी के पीछे टीजिंग हो गई, किसी ने सीटी बजा दी, कोई तंज कस दिया, या फिर लेक्चर्स को कई बार हो सकता है हैरेसमेंट फेस करना पड़े अपने आप में। तो कानून जो है हमारा, वो क्या प्रावधान ऐसा देता है, वो ऐसी क्या चीजें देता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इस पे कुछ कानून है जो मैं आप सबके सामने दर्शाना चाहूंगा। एक कानून जो आजकल बहुत चर्चा में, जो मैं समझता हूँ आप लोग के कॉलेज में भी चल रहा होगा, वो है पॉश एक्ट। पॉश एक्ट का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अगेंस्ट हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस। यानी कि अगर कोई महिला को आप सेक्सुअली प्रताड़ित करते हैं या कोई उन पर टिप्पणी कसते हैं या उनको अभद्र तरीके से देखते हैं या उनका किसी और तरीके से शोषण करने की कोशिश करते हैं, तो जो अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं तो आपकी जो एक कमेटी बनती है उसमें एक कानून की व्याख्या है कि आईसीसी बनेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी, और उस कमिटीज में मेंबर्स होंगे और उस मेंबर्स में मेजोरिटी मेंबर्स लेडीज होंगी, पर जेंट्स को कोई प्रोहिबिशन नहीं है और उसका ऑड नंबर होना चाहिए। तो 2 तरह की कमेटी बनती है, एक आईसीसी होती है और एक एलसीसी होती है। आईसीसी कमेटी वो कमेटी होती है जो एक संस्था अपने अंदर जहां पे भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं अंडर पॉश एक्ट,
उसकी नियुक्ति करेगी। और एलसीसी होती है जो एक आउटसाइड कमेटी होती है, जहाँ पे अगर आप इनफॉर्मल वर्कफोर्स है या आपके डोमेस्टिक वर्कर हैं, आपके घर में कोई काम करने के लिए आते हैं, या फिर जो भी छोटा मोटा परचून की दुकान है, किसी वकील साहब का दफ्तर है, या कोई सीए साहब है, आर्किटेक्ट साहब है, जहाँ पे भी 10 से कम लोग काम करते हैं, वो लोग अपनी शिकायत एसडीएम साहब को, जो इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट है, उनके पास जाके दाखिल कर सकते हैं। तो ये दो चीजें पॉश एक्ट में बहुत निर्धारित होती हैं कि आईसीसी फॉर इंस्टीट्यूशन और एलसीसी उन जगहों के लिए जहाँ पे 10 या 10 से कम लोगों की वर्कफोर्स आती है। तो ये बात तो हो गई कि पॉश एक्ट में टाइम बाउंड, जैसे कि डॉक्टर बहल मैम ने इससे पहले व्याख्या की उसकी, कि टाइम बाउंड मैनर में उसका निर्णय होना चाहिए कि 90 दिन के अंदर आप उसको डिसाइड करें। और अगर शिकायत का सही होना पाया जाता है, जो कमेटी बैठती है उसमें हम अंग्रेजी में चीज कहते हैं रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होते हैं। माने कि अगर किसी ने शिकायत की है और किसी महिला की शिकायत आई है आपके पास और किसी पुरुष के लिए वो शिकायत होती है आमतौर पे, तो दोनों पार्टियों को बराबर सुना जाएगा। इसको रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता है, जो कि कोर्ट में भी लागू होती है कि बिना किसी पार्टी को अनसुना किए हुए कभी भी न्याय पक्ष अपना न्याय नहीं देता। क्योंकि न्याय की एक बेसिक परिभाषा है कि जब भी किसी को सुना जाए तो दोनों पक्ष को सुना जाए। क्योंकि आपको बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम चाहे सरपंच की बात करें, पंचायत की बात करें, या कोर्ट की बात करें, या इन कमिटीज की बात करें, तो किसी के पास भी फैक्ट फाइंडिंग की जादू की छड़ी नहीं होती। हर इंसान का एक पहलू होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है, और इन कहानियों के तर्क पे, जिनको हम फैक्ट फाइंडिंग कहते हैं, कोर्ट या वो कमिटीज या वो पंचायत डिसाइड करती है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। और इसी के बेसिस पे एविडेंस का जो पूरा कानून इस देश में लागू हुआ है, उसको हम समझ के एक ट्रायल को डिसाइड करते हैं, और वो ट्रायल को अपने आप में आगे बढ़ाया जाता है। ये बात तो हो गई पॉश एक्ट की। अब ऐसे और कई अपराध हैं जो आप लोगों ने आमतौर पे सुने होंगे। सबसे जघन्य अपराध जो एक होता है वो है बलात्कार का। उसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे क्राइम है जो निर्भया के बाद, अमेंडमेंट के बाद आए, जिसमें से कि ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग आती है, वॉरिज्म आता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है, लोगों का अगर आप प्राइवेट एक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारे उसमें अपराध आते हैं। ये अपराध भारतीय दंड संहिता, जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन पीनल कोड कहते हैं, उसमें उजागर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून है इस देश का, उसमें उजागर है। मैंने पॉश एक्ट की आपसे बात की, उसमें उजागर है। और एक पॉक्सो एक्ट है, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। तो जो भी बालक या बालिका 18 साल से कम उम्र की आयु के हैं, उनके ऊपर वो एक्ट लागू होता है। तो उनके साथ अगर कोई शोषण हुआ है या किसी अडल्ट ने उनका कोई वीडियो लाने की कोशिश की या उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लाने की कोशिश की, अगर उनपे ये एफआईआर कट जाती है और एफआईआर कटने के बाद उनकी अरेस्टिंग होती है, तो बाकायदा उसके ट्रायल होते हैं, जिसके लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, ताकि एक टाइम बाउंड मैनर में उन चीजों पे चर्चा हो, उन चीजों पे ट्रायल फटाफट किया जाए और सजा जल्द से जल्द जो दोषी है उसको दी जाए, जो अभियुक्त है उसको दोषी करा करके सजा दी जाए। तो ये तो हो गए हमारे मोटे माटे कानून। अब कई बार ये सवाल आता है कि जनाब बात ऐसी है कि हमारा जो कोर्ट है, लोगों का एक मंशा है कि बहुत धीमी गति पे चलता है। आप कछुए की गति उसको मान के चले कि कछुए के रफ्तार से चलता है और लोगों को चाहिए कि वो खरगोश की रफ्तार से भागे, तो ऐसे काम कैसे होगा। तो इसमें बड़ी दो कहावतें हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, it should seem to be done. That is the very old saying. And the other saying is justice delayed is justice denied. And the third saying is justice hurried is justice buried. तो तीनों व्याख्याएं हैं, तो इसमें हम किस चीज को मान के चलें? क्या हम जल्दबाजी में न्याय कर लें ताकि किसी का अन्याय हो जाए, या हम न्याय को इतना च्युइंगम की तरह खींच के स्लो कर दें कि उसका हम एंड ही ना देख पाए लॉजिकल, और या फिर तीसरा ये है कि कानून, जब भी कानून या आप किसी न्यायपालिका में जाते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कोर्ट का जो समय होता है दिन का समय होता है। उसका लॉजिक ये है कि सारे काम जो कोर्ट के अंदर होते हैं, चाहे वो वकील साहब बहस कर रहे हो या जज साहब वहां पे बैठे हों या ऐसा लिटिगेंट आप अपनी शिकायत वहां पे दर्ज करें, तो सब रोशनी में काम हो, ताकि रोशनी के चलते वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने पारदर्शिता से दिख सके। कोर्ट जो हमारे सिस्टम है वो इसलिए बना है ताकि पारदर्शिता उसमें बनी रहे। आप कोर्ट जाएं, आप अपने हक के लिए लड़ें, और आपको जो न्याय चाहिए वो न्याय आप तक पहुंचे न्यायपालिकाओं के माध्यम से। तो ये तो वो बात हो गई। बाकी एक दो मरतबा मेरे से लोगों ने सवाल किया कि भाई निर्भया का केस हुआ, इतना लंबा केस चला, ऐसा क्यों चला, इसमें 7 साल लग गए। तो इसका मैं अमूमन ये जवाब देता हूँ लोगों को कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको न्याय प्रणाली बताई कि 3 टियर सिस्टम है इंडिया के, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से अपील जाती है इस देश में। अगर निर्भया का केस किसी भी इंसान ने फॉलो किया हो इस देश में, तो आप इस बात को जरूर समझेंगे कि जो ट्रायल कोर्ट यहाँ पे हमने जो ट्रायल कोर्ट का जब संग्रह हुआ यहाँ पे और जब निर्भया के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग की गई, तो अपने आप में वो ट्रायल एक टाइम बाउंड ट्रायल था जो बहुत तेजी से डिसाइड हुआ। उसके बाद जाहिर सी बात है जो उसमें जो अपराधी को जो दोषी करार दिया गया, उनकी राइट बनती है कानून में कि अपील करें।
तो वो अपील के लिए हाई कोर्ट गए, उस अपील के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, और तीनों कोर्ट का एक मत में ये मानना था कि ये लोग दोषी हैं, इन्होंने एक अपराध किया है इस बेचारी लड़की के साथ। ना ही सिर्फ बलात्कार हुआ है, बल्कि जिस बर्बरता से उसकी हत्या की गई है उसके चलते उनको सबको फांसी की सजा सुनाई गई और उनको आज फांसी मिल भी गई है। ये बात जरूर समझने की है कि देखिए, निर्भया एक ऐसा कांड था जिसने देश के बहुत लोगों को जागरूक किया, यूथ को जागरूक किया, सिविल सोसाइटी को जागरूक किया, कोर्ट को जागरूक किया, लेकिन अपने आप में पहला बलात्कार नहीं था, पहला अपराध नहीं था। ये अपराध आज भी होते हैं और पहले भी होते आए थे, पर इस अपराध का दोषी कानून नहीं है, इस अपराध का दोषी कोर्ट नहीं है, इस अपराध का दोषी है इंसान। क्योंकि जो ह्यूमन साइकी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन साइकी जो है कई बार बहुत ट्विस्टेड होती है। देखिए, कानून बने हैं सशक्तिकरण के लिए बने हैं, कानून बने हैं आपको और मुझको बचाने के लिए बने हैं, तो कानून अपनी जगह पे सही है। चाहे मैं एक महिला के प्रोटेक्शन के लिए डाउरी हैरेसमेंट लॉ लाऊं, चाहे मैं एक महिला के प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाऊं, चाहे मैं एक विवाहित महिला के लिए डाउरी डेथ के केस लाऊं, तो कानून सब अपनी जगह है, सशक्त बने हैं। लेकिन जो लोग, जब आपको शादी का उदाहरण देके चलता हूँ, मैट्रिमोनियल केस का, जब किसी इंसान की शादी होती है, जब दो लोगों के घर के रिश्ते बनते हैं, तो वो अपने हाथ में दंड संहिता लेके या डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लेके या किसी वकील के पास मशवरा करने नहीं जाते कि मैं शादी कर लूं कि नहीं। वो अपने पंडित के पास जाते हैं, अपने मौलवी के पास जाते हैं, अपने परिचितों के पास जाते हैं कि भैया ये लड़का ठीक है या लड़की ठीक है, हम इससे रिश्ता जोड़ सकते हैं कि नहीं। उस वक्त तो सब बात सही होती है, पर जब बात खराब होती है, जब रिश्तों में खटास आती है, जब शादी टूटने लगती है, तो उसमें दहेज की वही एफआईआर कटती है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी कटते हैं, उसमें डिवोर्स के मैटर भी आते हैं, और तब लोग कहते हैं देखिए जी कानून का सिस्टम तो बहुत स्लो है। तो कानून के गिरेबान पे स्याही लगाने से पहले, दाग लगाने से पहले हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम बतौर समाज क्या कर रहे हैं, क्या हमें कानून की समझ है कि नहीं। क्योंकि कानून सिर्फ ये कहता है कि शादी आप अपने मन की कर सकते हैं और उसको रजिस्टर भी आप एसडीएम कोर्ट में जाके कर सकते हैं, पर जब आपकी शादी टूटती है, ना तो उसमें किसी वकील की जिम्मेदारी होती है और ना ही कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शादी टूटने की वजह दो लोग होते हैं या उनका परिवार होता है। कानून उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है। इसलिए कानून में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात होती है तो उसमें सास का और उसमें बहू का बराबर की भागीदारी है और दोनों को कानून में बराबर के हक दिए गए हैं। अगर एक प्रताड़ित महिला ये कहती है कि मेरे से दहेज की मांग हुई, मेरे परिवार से दहेज की मांग हुई, तो दहेज की मांग सिर्फ पुरुष नहीं करते, महिलाएं भी करती हैं, क्योंकि सास और ससुर एक जोड़े में आते हैं। पति और उनकी अगर नंद हैं, देवरानियां हैं, जो भी हैं, जेठानियां हैं, एक जोड़े में आती हैं। तो यह हमें समझने की जरूरत है कि कानून को दोषी करार देने से पहले हमें अपने समाज को उसका स्वलांकन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को असेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम किसी इंसान पे एक उंगली उठाते हैं तो बाकी तीन उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। तो इस चीज को भी समझने की बहुत जरूरत है कि कानून आपके लिए बना है, कानून की प्रक्रिया आपके लिए बनी है, क्योंकि जो भी प्रताड़ित है, जिसका भी शोषण किया जाता है, कानून उसको रक्षा देता है, कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। और कानून प्रणाली जो है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसी कानून के तर्जुमों पे उसी कानून के बैकग्राउंड पे अपने केस को डिसाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, जज साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, जब तक आपने उनको किस्सा नहीं सुनाएंगे आपका केस डिसाइड नहीं कर सकते। और केस में क्या सच है, क्या गलत है, कौन सा पक्ष या विपक्ष सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इस बात के लिए पूरा अपने आप में एक ट्रायल का प्रोसेस है। इसलिए कई बार ये टाइम लेता है, और इसलिए टाइम नहीं लेता कि कोर्ट सिर्फ कोर्ट स्लो है, टाइम इसलिए भी लेता है क्योंकि जो पार्टियां लड़ने आती हैं कोर्ट में एक दूसरे से, वो अपने वकील साहब को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वकील साहब हम तो ये केस खींचना चाहते हैं, हम दूसरी पार्टी को तंग करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते इनको इतनी जल्दी रिलीफ मिले। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार हस्बैंड की तरफ से भी अपियर होता हूँ, कई बार वाइफ की तरफ से भी अपियर होता हूँ, कई बार कंप्लेनेंट्स की तरफ से भी अपियर होता हूँ जो लेडीज हैं, और कई बार अक्यूज की तरफ से प्रेजेंट होता हूँ जो कि जेंट्स हैं या लेडीज हैं, जिन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, रेप के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलग अलग ऑफेंसेस या एलिगेशन लग जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है कि जेंडर इक्वालिटी जो हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं समाज में, और आप लोग तो कॉलेज गोइंग लोग हैं, आप यूथ हैं इस देश के, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपकी लिव इन रिलेशनशिप है, या कल आपकी शादी होगी या आपका रिश्ता देखा जाएगा, या आपके घरों में ही आपके माँ बाप हैं जो दाम्पत्य जीवन में है, या आपके भैया भाभी हो सकते हैं, कोई भी हो, तो जो जेंडर न्यूट्रलिटी है वो एक रथ की तरह है। जो रथ होता है, रथ के पहिए जो होते हैं, अगर दो पहिए पुरुष हैं तो दो पहिए महिलाएं भी हैं, और उस रथ को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये समझना जरूरी है कि जेंडर इक्वालिटी में हम सबको बराबर का सम्मान दें, कानून बराबर का सबको हक दे, और जब हम कोर्ट में जाएं तो जस्टिस की जो परिभाषा है, जस्टिस सबको बराबर मिले। जब तक जस्टिस लोगों को बराबर नहीं मिलेगा, मेरी समझ से, मेरा अपना ये मानना है, हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, हम लोग एक दूसरे पे दोष और प्रत्यारोप के जो आरोप प्रत्यारोप है, दोषारोपण है, वो करते रहेंगे, और उससे कभी भी हम बाज नहीं आएंगे।
तो कानून की समझ होना हमारे समाज में जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जो वसंत कन्या महाविद्यालय आज इस कानून लीगल एजुकेशन जो है हमारे देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती आमतौर पे कि उनके अपने हक क्या हैं, उनकी अपनी गलतियां क्या हैं, कानून उनके लिए किस तरीके से कारगर साबित हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ एक आखिरी शेर कह के। पर इससे पहले जो भी अगर आपके चैट बॉक्स में सवाल हो, मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा उनको आप प्लीज रखिए, ताकि मैं बेबाकी से उनका जवाब दे सकूं जो मेरी अपनी समझ है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक आखिरी शेर अर्ज करूंगा जो अगेन एक वेरी जेंडर न्यूट्रल शेर है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप थर्ड जेंडर है, फर्क नहीं पड़ता। वो इस किस्म से है कि कत्ल कर दे निगाहों से, कत्ल कर दे निगाहों से, ना तकलीफ हो दोनों को, न तुझे खंजर उठाने की, ना मुझे गर्दन झुकाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर। धन्यवाद सर। जी मनोज सिंह जी बताएं। मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि आप एक एक करके अपने सवाल मुझसे करें ताकि मैं एक एक करके आपसे जवाब दे सकूं आपको। जी सर। यस मैम गुप्ता, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी 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 नहीं सर, जैसे अभी आपने ही कहा कि बहुत सारे केस लोग आते हैं हमारे पास, ये केस हम जीतना चाहते हैं, ये तो इसमें क्या वकील की कोई मॉरल ड्यूटी बनती है या सिर्फ पार्टी के कहने के हिसाब से वकील उस केस को भले ही गलत है तब भी जिता देता है? ऐसे में जो सही आदमी उसको न्याय कहाँ मिला सर? मैडम देखिए, वकील आपको कभी सही और गलत रास्ता नहीं दिखाते। वकील वही कानून पढ़ते हैं जो कि आप पे उतना ही लागू होते हैं जितना कोर्ट पे लागू होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कहा, अगर एक डाउरी का केस में मान के चलूं कि अगर डाउरी केस में एलिगेशन लगती हैं, वो एलिगेशन सही है या नहीं इसका निर्णय कोर्ट ने करना है। आपने जब शादी की और अगर आपने दहेज दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो आपने दहेज दिया क्यों, एक ये बात कहने को जाती है। फिर आप कहेंगे देखिए इसमें वकील का हाथ नहीं था, इसमें सामाजिक जो प्रेशर है, जो सोसाइटल प्रेशर एक्ट कर रहे हैं वो ब्लेम है। तो जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वो लॉयर पे लागू नहीं होती है, वो उस इंसान पे लागू होती है जो लॉयर के मिलने से पहले दहेज दीजिए। मैंने अपने आज तक किसी क्लाइंट को नहीं बोला कि आप अपनी बेटी की शादी में दहेज दीजिए, ये मेरी राय नहीं है। लेकिन लोग प्रेशर में आके, सोसाइटल प्रेशर में आके, नॉर्म्स में आके अगर दहेज देंगे, गलत काम करेंगे और या फिर अपनी बेटियों की गांव घरों में टीनेज में शादी करा देते हैं, बाल विवाह करा देते हैं, उस प्रथा को भी कानून नहीं मानता लेकिन करा दी जाती है। और बाद में हम वकीलों पे ये कसा जाता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। हम सिर्फ जो कानून में रक्षा करने के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आज कानून में ये बात होती है कि मर्डर गलत है तो वकील ये नहीं है मर्डर सही है। अगर कानून कहता है कि बलात्कार गलत है तो मैं नहीं कह सकता कि बलात्कार सही है। ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये कानून सदियों से चले आ रहे हैं और समाज कल्याण के लिए चले आ रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। एक नंदिता दास का क्वेश्चन है सर। एक नंदिता दास का क्वेश्चन है, वो पूछती हैं कि वन ऑफ माय स्टूडेंट इज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड वांट्स डिवोर्स बट हर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग। शी डज नॉट हैव मच फाइनेंशियल सपोर्ट। व्हाट शुड शी डू? देखिए सर, बड़ा आसान है। हर कोर्ट में भारत देश में एक लीगल एड की व्यवस्था की गई है और आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको वही बता देता हूँ कि लीगल एड मौलिक रूप से 2 लोगों को दिया जाता है। पूरे देश भर में लीगल एड सेल होते हैं। हर कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट का अपना लीगल एड सेल है, हाई कोर्ट के अपने लीगल एड सेल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपना लीगल एड सेल होता है। उस लीगल एड सेल में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या एक फाइनेंशियल वहां पे कैटेगरी डाल दी गई है कि अगर आपकी सालाना इनकम एक लेवल से कम है तो आपको फ्री लीगल एड कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक वकील साहब मिलेंगे या वकील साहिबा मिलेंगे और वो आपका केस करेंगे। और महिलाओं के लिए सेवा देश भर में निःशुल्क है। कोई भी महिला चाहे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या ना हो, लीगल एड को किसी भी समय जाके अवेल कर सकती है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी मनोज जी। जी मैम आप बोलिए। एक्चुअली एक सवाल है जो थोड़ा पहले पूछा गया था इसलिए चैट बॉक्स में ऊपर चला गया है। डॉक्टर माधवी शुक्ला ने पूछा है कि कानून कई मामलों में निर्बल प्रतीत होता है, क्या करना चाहिए? और सामाजिक संरचनाओं पर संकट है, क्या उन्हें वैसे ही छोड़ देना होगा? नहीं मैडम, देखिए वकील और कोर्ट समाज का आईना है। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें, क्योंकि जो आपने मुझे बात रखी, कानून निर्बल की रक्षा करने के लिए बना है। अगर निर्बल अपनी रक्षा खुद कर सकता तो कानून की संरचना नहीं होती। इस चीज को समझिए।
जितने आप कानून पढ़ेंगी, अगर आज महिला रिलेटेड कानून की मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बताया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बताया, आईपीसी के आपको प्रावधान बताया, इसमें बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजें, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे देश में महिलाओं का शोषण हुआ है और ये बात छुपी नहीं हुई है, ये बात उजागर है। तो क्या ये कहना सही होगा कि पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाए? क्या ये बात कहनी गलत होगी कि कोर्ट इस पे हरकत में नहीं आता? एकदम आता है। जो चीजें आप मीडिया में पढ़ते हैं, अपने अखबार में पढ़ते हैं, एक तो मैं मीडिया को बहुत दोष देता हूँ इस चीज का, क्योंकि देखिए मैं पिछले 10 साल से कभी टीवी नहीं देखता, और टीवी ना देखने की वजह यह है क्योंकि टीवी में सर्कस बन जाता है, वहां पे भद्र व्यवहार नहीं होता, लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनकर चीखने चिल्लाने शुरू हो जाता है। तो हमारा समाज जिस तरीके से ढकेला जाता है मीडिया हाउसेस के थ्रू, वो गलत है, और उसमें हमेशा कोर्ट की जगह घसाई हो जाती है। अगर आप कभी खुद कोर्ट जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक जज के पास कितना बर्डन है केसेस को डिस्पोज ऑफ करने का। उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कई टाइम पे। अगर आप दिल्ली के बाहर कहीं पे ट्रैवल करें, आप वाराणसी का ट्रायल कोर्ट आके देखिए, आप सब लोग तो यूपी में अधिकतर या नहीं भी है, तो आप अपने लोकल कोर्ट्स को जाके देखिए कि एक जज के पास दिन के कम से कम 50 से 100 मैटर होते हैं जिनको वो पूरी ईमानदारी से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। और अगर पार्टी आके जज साहब से कहते हैं नहीं सर आज मैं बीमार हूँ, मेरा हाथ दर्द है, मेरी बीवी के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डेट चाहिए, तो जज साहब अगर उन पर पेनल्टी भी लगाएंगे तो अगली तारीख में वेव ऑफ करा लेते। उसके लिए वकील साहब से कहते हैं कि जज साहब के आप हाथ पैर जोड़ लीजिएगा। तो वही मैंने कहा कि दोषारोपण करना हमेशा बहुत सरल होता है, पर हम सब समाज का आईना है, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम खुद नहीं समझेंगे कि हमारे कानून में क्या हक है, कि कानून हमें सशक्त कैसे करता है, सबल कैसे करता है, उसकी जानकारी के बिना फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जो एक अंतर होता है एक अनपढ़, एक अंगूठा छाप अनपढ़ व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे इंसान में, वही अंतर हो जाता है एक लीगल इलिटरेट पर्सन में और एक लीगल लिटरेट पर्सन। सर एक और क्वेश्चन है अर्पिता मिश्रा जी का, कि अगर दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं और एक जना कोई मूव कर जाता है तो दूसरा जो है वो क्या इसके लिए लॉ का सहारा ले सकता है? एकदम ले सकता है मैडम। 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जस्टिस मार्कंडे कार्ड जो आपके यूपी के इलाहाबाद के, उन्हीं का जजमेंट था, और उन्होंने एक टर्म उजागर किया था, जैसे कि मैट्रिमनी लॉ में एलिमनी का कॉन्सेप्ट है, इस जजमेंट के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आया था पैलिमनी का। पैलिमनी, पैल इज अ फॉरेन टर्म, इंग्लिश टर्म, पैल मतलब होता है फ्रेंड, तो एलिमनी का उन्होंने पैलिमनी बना दिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा 2010 में इस बात को उजागर किया था कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप आज एक सच्चाई है, जो युवा है या युवा नहीं भी है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और अगर वहाँ एक स्त्री है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उसको मेंटेनेंस की जरूरत है अपने लिव इन पार्टनर से, तो वो कोर्ट में जाके मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें सेक्शन आई थिंक 125 उनको हक देता है। जितना एलिमनी वाली शादीशुदा महिला को हक है, उतना ही लिव इन पार्टनर को भी आज एक हक है कोर्ट में जाके पैलिमनी मांगने का। One more, Dr. Alka Gupta has asked that how to create legal awareness among especially women regarding their security and safety. मैडम वो तो आप करिए, ऐसे ही वेबिनार और करें आप, मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं देश भर में, वो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, जैसे स्कूल में हम सेक्स एजुकेशन देते हैं, मैं समझता हूँ लीगल एजुकेशन उतनी ही जरूरी है अपना हक समझने के लिए सबके लिए, और उसको कॉलेज में भी पढ़ाना चाहिए, स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग जब तक उजागर नहीं होंगे अपने हक के लिए तो कोर्ट आके फिर वो कई बार होता है कि मार्गदर्शन नहीं हो पाता। कई बार हो सकता है आपको ऐसे वकील मिले जो आपका सही मार्गदर्शन ना कर पाए, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका केस खराब हो जाए, ऐसे भी चीजें होती हैं, मैं उससे उस बात को झुटला नहीं सकता। लेकिन जब तक लीगल एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, मेनलाइन एजुकेशन के साथ स्ट्रीम नहीं होगी इस देश में, तब तक जो भी इंफॉर्मेशन है मैडम वो बहुत स्कैटर्ड रहेगी, और प्रॉब्लम ये होती है जब भी इंफॉर्मेशन स्कैटर होती है उसको स्ट्रीमलाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। Thank you, sir. जयवीर सिंह नेगी has asked that महिलाओं के अधिकारों की बात हर जगह होती है, इसके विपरीत पुरुषों के कोई अधिकार नहीं है, इनके लिए क्या देश में कोई कानून है? सारे कानून है मैडम। देखिए, कानून जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी का हित या अहित नहीं चाहता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात समझने की है कि अगर महिलाओं के लिए कानून बने हैं तो वो पुरुषों को सताने के लिए नहीं बने, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। कानून की जो परिभाषा है वो ये नहीं है कि मैं अगर स्त्रियों को आज कानून बना के देता हूं तो मैं पुरुष को झकझोर रहा हूं। कानून की कभी मंशा नहीं होती है। कानून की मंशा यह है कि एक इंसान को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्त्रियों को लगता है या कानून को लगता है, जो कानून बनाने वाले हैं, कि स्त्रियों की पोजीशन ऐसी है कि इसमें निर्बल मानी जा रही है, तो उनको कानून में हक दिया जाए। ऐसा कहाँ पे इस देश में डेटा है
या अगर है भी तो ऐसा बहुत मिनिस्क्यूल होगा जहाँ आपने सुना हो कि एक औरत, शादीशुदा औरत, शराब पी के रात को 12 बजे घर आके अपने पुरुष की पिटाई कर रही हो। ऐसा डाटा नहीं है हमारे देश में। इसका विपरीत डेटा है, जहाँ पे पुरुष आमतौर पे जाते हैं कि शराब आए, वापस आए और बच्चों को पीटा और अपनी स्त्रियों को पीटा, क्योंकि कमाने का जो जरिया है आर्थिक रूप से और हिस्टोरिकल तरीके से पुरुष के पास हमारे देश में दिया गया है। तो अगर जो मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप डेटा मुझको दें कि सर डेटा ऐसा है कि पुरुष की भी बहुत पिटाई होती है, देखिए मेंटल हैरेसमेंट होता है, फिजिकल अब्यूज भी हो सकती है शादी में, मैं उस चीज को मानता हूँ, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसमें कानून आपको डिवोर्स का हक देता है, आप जाइए और डिवोर्स ले लीजिए, कोर्ट से कौन मना करना है। डिवोर्स का हक जितना आदमी को उतना ही औरत को भी है, तो आप डिवोर्स ले सकते हैं, आप अपनी पत्नी से अलग होकर रह सकते हैं। आपको कानून ने कभी भी इस चीज में आपको बंधन नहीं दिया हुआ कि अगर आपकी शादी नहीं सही चल रही तो आपको उसी स्त्री के साथ रहना है। आप अलग अपना घर ले सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। तो ये कह के रोना कि पुरुषों के पास हक नहीं है, गलत है। पुरुष के पास भी कानूनी उतने ही हक है जितने स्त्रियों के पास है, लेकिन स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए ये कानून इस देश में लाने जरूरी थे, अनिवार्य थे, इसलिए इनका उद्गम हुआ है। एक मेरा प्रश्न है मैम, मेरा प्रश्न है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का आपने सुना होगा, एक डिसीजन आया था अभी हाल ही में, जिससे सिंदूर और वो मंगलसूत्र की बात हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि मतलब न्यायाधीश महोदय ही पूर्वाग्रह से ग्रसित और लाख कानून ऐसे बने हो जो महिलाओं के अधिकार को न्याय दिलाने के लिए हो, और जबकि उनका ये वर्डिक्ट आता है कि उन्होंने चूड़ी या मंगलसूत्र नहीं पहना इसलिए उनको डाइवोर्स मतलब उनको उनका हस्बैंड ले सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये कानून उनको कहाँ तक न्याय दे पाएगा या दे पाएंगे? आपको ये देखिए, आपने अगर जजमेंट पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, ये टिप्पणी उसमें हुई है जजमेंट में, और इसमें काफी उन पे मतलब मैं कहूँगा कि सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी और लीगल सर्कल्स में भी इसकी काफी उपेक्षा की गई, काफी उनको कटाक्ष आ गया। लेकिन अगर आप देखें इस जजमेंट के एंड में डिवोर्स ग्रांट हो गया, क्योंकि महिला डिवोर्स के लिए आई थी अपने पति की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी धारणा सही थी, जज भी इंसान है, जज से भी गलती होती है, गलत टिप्पणियां आती हैं, उसको मैं बतौर वकील एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में नहीं कह रहा उन्होंने जो किया सही किया। लेकिन अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो डिवोर्स की मांग की गई थी और डिवोर्स फाइनली ग्रांट हुआ है, तो अन्याय नहीं हुआ, पर जो टिप्पणी कसी वो टिप्पणी कसने की इनको जरूरत नहीं थी। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी, जैसे अररिया का भी कल का मामला, जैसे इससे पहले एक मैम ने पूछा था कि अभी उसमें कोर्ट में रेप विक्टिम को ही इस तरह की उन्होंने एक तरीके से उनको बदतमीज शब्द उपयोग किया उनके लिए जी, उस लड़की के लिए जो रेप विक्टिम। तो अगर ये न्याय के पद पे बैठा अगर कोई व्यक्ति इस तरह के शब्द उस पीड़िता से कहता है, तो वो कैसे इस तरह के न्याय के मंदिर पे भरोसा उसका कितना रहता है? देखिए, आपने मुझे दो अभी उदाहरण दिए, एक गुवाहाटी हाईकोर्ट जज का दिया और एक आपने अररिया का दिया। ये दो हादसे हैं जो हो सकता है कि आपने समाचार के जरिए आप तक आए हों। इसलिए मैंने कहा लीगल एजुकेशन जो हमारे देश में नहीं है, इसको मैं लीगल इलिटरेसी कहता हूँ। आप कभी भी कोर्ट जाने की कोशिश करिए, मुझे पता नहीं आप कितनी दफा लाइफ में कोर्ट गए हैं, पर कोर्ट जाइए। कहते हैं ना कि वेरी ओल्ड सेइंग कि एक सड़ा से बाकी सेब को सड़ा देता है, लेकिन हमारी जुडिशरी ऐसी नहीं है। अगर एक या दो लोग हो सकता है कि गलत, और अभी निर्णय नहीं आया। देखिए, गुवाहाटी का निर्णय गलत नहीं था, टिप्पणी गलत थी, और हरियाणा में जज साहब ने टिप्पणी कसी है लेकिन अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और बाकी जो जज हैं जो अब न्याय प्रणाली में उतनी ईमानदारी से काम करते हैं, हम उनको क्यों नहीं उजागर करते? इसका मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। विकास दुबे, विकास पंडित का भी एनकाउंटर हुआ, और उस एनकाउंटर पे काफी उफान उठा इस देश में कि भाई क्या यूपी पुलिस ने जो किया सही था कि नहीं था। पर इस बात पे कम चर्चा हुई कि जो 8 पुलिस वाले ड्यूटी करते हुए मरे थे वो सही थे कि नहीं थे। तो इसी का अगर आप पैरेलल टू जुडिशरी पे करते हैं, इतने अच्छे जजेस और वकील हैं इस देश में, डे इन डे आउट निष्ठा से अपना काम करते हैं, कोर्ट में अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ते हैं, उनकी कभी बात नहीं होती। पर ऐसे जब दो केस उजागर हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि न्याय के मंदिर पे हम कैसे भरोसा करें। अब आप ये देखिए कि इतने निर्भया का जो केस हुआ, क्या वो न्याय के मंदिर से नहीं हुआ था? लगातार नीचे के कोर्ट से लेकर सर्वोच्च कोर्ट ने उनको फांसी की सजा मुकर्रर की और एक भी बार टस से मस नहीं हुए। तो अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि निर्भया का कानून मामले में सर उस लड़की को जेल भेज दिया गया, नहीं सर जेल भेजा, लेकिन एक केस की वजह से आप पूरी जुडिशरी को बदनाम नहीं कर सकते। ये तो वही बात हुई कि अगर फैकल्टी में एक टीचर खराब है तो मैं पूरी फैकल्टी को बुरा कहना शुरू कर दूं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जी, मैं उस पूर्वाग्रह की बात कर रहा हूं। प्लीज मैम आप सर, मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपने कहा, और मुझे इसी पर तो सवाल पूछना है कि वास्तव में अगर देर किया जाए तो एविडेंसेस खत्म। मैं सिंस
एक ग्रामीण परिवेश से आई हूँ और मैंने देखा है कि हर घर में मुकदमेबाजी वहाँ होती है। एक पीढ़ी बीत जाती है, खत्म हो जाती है, मुकदमा रह जाता है। जब तक गांव के भांडे बर्तन नहीं बिकते तब तक वो मुकदमा चलता रहता है। तो व्हाट आई फील है कि वास्तव में उस जस्टिस का कोई मतलब नहीं है सर, जो बहुत देर से आए। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि आपके रिक्रूटमेंट कम है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। स्टिल जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मैं इस बात पर यकीन करती हूँ। मैं आपका मत जानना चाहती हूँ। मैडम, मैं आपसे सरासर सहमति में हूँ, इसलिए मैंने एक कोटेशन उस टाइम की जब मैंने संबोधित किया इस मंच को। लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं, हो सकता है आपने कुछ सालों पहले जस्टिस ठाकुर, अब तो रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, तो विज्ञान भवन दिल्ली में एक स्पीच दे रहे थे। वहाँ पे प्रधानमंत्री भी थे, बाकी एस्टीम गेस्ट भी थे, और कहते कहते उनकी आंखों से आंसू इसलिए छलक पड़े क्योंकि उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट से में इनफ फंडिंग नहीं आती। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो जुडिशली क्लियर कर लेते हैं, पर जज इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि कोर्ट रूम्स नहीं है इस देश में, क्योंकि फंडिंग नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब सरकार हमसे कर लेती है, हर बंदा यहाँ पे ईमानदारी से अगर इनकम टैक्स भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये मेरा अपना मानना है, मेरे पर्सनल व्यूज हैं, हो सकता है आप सहमत हो या ना हो, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि देश की अगर हम रक्षा की बात करते हैं तो हम डिफेंस में हम पैसा लगाते हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं हम एजुकेशन में पैसा लगाते हैं, वही पैसा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में क्यों नहीं लग सकता। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजिए कोर्ट में, कोर्ट विजिट के लिए कभी भेजिए, तो जिस बर्बर हालत में कोर्ट चलता है, बहुत ही कई बार तो बहुत दयनीय अवस्था में होता है कि एक जज साहब बैठे हैं, 2 स्टाफ हैं, फाइलों के ढेर पड़े हुए हैं। और अगर हम मूल्यांकन करें, अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देके चलता हूँ, सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे देश का, जिसकी सैंक्शन सीटिंग स्ट्रेंथ 34 जजेस की है, और 34 में से एट अ पॉइंट इन टाइम तकरीबन 26 से 28 जजेस एक टाइम पे बैठते हैं, पूरे कभी नहीं बैठते। और ये हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन पीपल। अब आप गणित कर सकती हैं कि कितना पुअर रेशियो है हमारे देश में, और ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है तो ट्रायल कोर्ट का क्या होगा आप खुद ही जानती हैं। और आपने सही कहा, गांव घरों से लोग आते हैं, बर्तन बिक जाते हैं, और कई बार रिलीफ नहीं मिल पाता। मैं खुद मैडम, क्योंकि देखिए मैं तो फौजदारी का वकील हूँ और दीवानी के मैंने कुछ काम मुकदमे किए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दीवानी के मुकदमे में जो समय व्यतीत होता है 5, 10, 15, 20 साल का नहीं होना चाहिए। पर इसके लिए जो लिटिगेंट्स हैं, जो पार्टीज हैं, उनका भी इतना दोष है, क्योंकि अपने वकील साहब जहां उनको स्टे मिल जाता है, एक माइनर रिलीफ मिल जाता है, तो केस को खींचने लगते हैं, क्योंकि मुद्दा फिर ईगो का आ जाता है दोनों पार्टियों में। अगर भाई भाई की लड़ाई है, पड़ोसी की लड़ाई है, तो कहते हैं इनको हम नहीं साबित होने देंगे। अपने बेटों को भी, उनके बच्चों को वही शिक्षा मिलती है कि बेटा हमारे जाने के बाद केस लड़ते रहना। तो ये सोशल चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी लीगल चेंज साथ में इसके हो पाएगा। क्योंकि लॉ, जैसे मैंने आपको कहा, एक आईना है समाज का, और जब तक समाज नहीं बदलेगा मैडम, तो कानून हम बदलने की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. If you allow us, so we can take up some more questions because chat box is filled with questions. बहुत सारे प्रश्न हैं। जितना मैं जवाब दे पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा। कंचन शर्मा पूछ रही हैं कि सर प्लीज मेंशन, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दोज स्पेशली फीमेल who register complaint against a man who is recognized face of the society, because there are many chances that the lady may be harassed and asked to shut her mouth against him. So वो फिर कैसे जाए कोर्ट और कैसे करे? मैडम, कानून में देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चोरी हीरे की हो या खीरे की, दफा एक ही लगती है। ऐसे ही अगर आपके ऊपर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो जो धारा 354 है या 376 है भारतीय दंड संहिता की, वो उतनी एक आदमी ए पे लागू होगी जितनी एक मिनिस्टर पे होगी। मंत्री और संतरी पे बराबर ही लगते हैं। हाँ, जहां तक पावर की बात है, पॉलिटिकल क्लाउड की बात है, उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, उसके लिए और कोई नहीं है। कोर्ट आपके लिए बने हैं, कोर्ट हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखिए जितने हाई प्रोफाइल केसेस देश में होते हैं जिनमें कन्विक्शन हुआ है, जो अपने अंजाम तक पहुंचे हैं, द रूट कॉजेज बिकॉज जुडिशरी हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तभी आज भी लोगों का जुडिशरी पे भरोसा है। अगर आपका पुलिस में भरोसा होता, अपने एमएलए एमपी पे जितना भरोसा होता, तो आप उनको लेके कभी कोर्ट नहीं आते। गलत होता है तो इसलिए न्याय की गुहार हमेशा न्यायपालिका में लगाई जाती है, पार्लियामेंट में नहीं लगाई जाती। जी एक और है प्रेरणा चौधरी जी, उन्होंने पूछा है कि इफ अ वुमन इज विक्टिम ऑफ मैरिटल रेप एंड शी इज नॉट एबल टू कंप्लेन, कैन एनी थर्ड पर्सन हैज राइट टू कंप्लेन ऑन हर बिहाफ? मैडम, मैरिटल रेप इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, पर इसके चलते 2 मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ अगर आप अपनी राइट को एजिटेट करना चाहती हैं। अगर आप जुडिशियल सेपरेशन में
जी रही हैं। जुडिशियल सेपरेशन मतलब अगर अलगाव हो रखा है पति पत्नी में, पर पति पत्नी के अलगाव होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप अपने मायके जाके रहें। अगर आप एक छत के नीचे आपके घर में 4 कमरे हैं और आपके बेडरूम अलग अलग हैं, उसको भी जुडिशियल सेपरेशन ही की कैटेगरी में माना जाता है। और निर्भया कांड के बाद जब ये अमेंडमेंट्स हुए हैं तो सेक्शन 376B को आप पढ़िएगा इंडियन पिनल कोड के, उसमें लिखा हुआ है कि इफ एनी मैन ट्राइज टू इम्पोज हिमसेल्फ ऑन हिज वाइफ एंड इफ दे आर लिविंग अंडर जुडिशियल सेपरेशन ही वुड बी पनिश्ड फॉर रेप। तो 376B, अगर सेपरेशन में आदमी अब तलाक नहीं हुआ पर जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं और आदमी अपने ऊपर अपनी वाइफ के ऊपर जोर जबरदस्ती करता है, सेक्सुअल प्रेडेटरशिप करना चाहता है, तो उसकी सजा भी उसको मुकर्रर होगी और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा ऑफेंस जो आप सबको पता होना चाहिए 377, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली स्क्रैप किया, जहां पे सेम सेक्स ऑफेंसेस को उन्होंने हटाया, लेकिन उसमें बात आती है कंसेंट और नॉन कंसेंट पे, क्योंकि इसमें अननेचुरल सेक्स की बात है। तो एनीथिंग विच इज इरेग्युलर इज डिफाइंड अंडर 377 और शादी के प्रावधान इस पे लागू नहीं होते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड पे चाहें तो आप सेक्शन 377 में एफआईआर कटवा सकती हैं और उनको तुरंत जेल हो जाएगी। Thank you, sir. Dr. Alka R. Gupta is asking, even after knowing the laws, why women still today don't feel at ease to approach court regarding their sexual harassment? Why जैसे they कि are मैंने मैम so आपको कहा, इसके लिए ना वकील जिम्मेदार है ना कानून जिम्मेदार है, इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब घर में आप अपनी बेटियों को बचपन में ब्याह देंगे, लीगल एजुकेशन इस देश में आप लगाएंगे नहीं, लोगों को अपना हक बताएंगे नहीं, जो असली सशक्तिकरण होना चाहिए वो होगा नहीं। और असली सशक्तिकरण तब हो सकता है जब आपका मानसिक बल आपके साथ हो, है ना। तो आप जब कहते हैं ना बुद्धि तस्य बलम तस्य, तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि ही बल है। और उस बुद्धि और बल के लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है देन यू आर पावरलेस। तो यू नीड टू नो योर राइट्स। और उसके लिए मैं माँ बाप को उतना ही दोषी देता हूँ जितना उस बच्चे के अंदर तो आपने डर बिठा दिया ना कि बेटा मत करो, ऐसे करो, या तुम करोगी तो समाज क्या कहेगा। तो समाज जो है, अगर समाज हितकारी नहीं है तो उसके लिए कानून को दोष देना ठीक नहीं होता। जी जरूर सर। एक रेखा सिंह जी का सवाल है, सर इज देयर एनी लॉ फॉर मेंटल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस? मैडम मेंटल हैरेसमेंट नहीं, पर सेक्सुअल हैरेसमेंट टेंटामाउंटिंग टू मेंटल एग्नी उसी पॉश एक्ट का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट तो पॉश एक्ट में, जो मैंने आपको बताया, पॉश एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अगेंस्ट वुमेन इन अ वर्क प्लेस। तो उस पर अगर कोई इंसान आपको लगातार घूर रहा है, आपको अभद्र ईमेल लिख रहा है पर आपको छू नहीं रहा, आपको उससे मेंटल हैरेसमेंट तो हो रहा है ना, तो आप आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है उसमें अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकती है। कानून आपको यह हक देता है पॉश एक्ट के अंदर। Thank you, sir. One last question is from Dechen Sherpa. What are the rights of the wife and children when the husband separates and marries another woman without a divorce? अगर तलाक नहीं हुआ और अगर हम हिंदू शादी की बात कर रहे हैं तो वो शादी मान्य नहीं है, वो अपने आप में वॉइड मैरिज होती है, उसको कानून की नजरों में जीरो माना जाता है। तो आप ले जा सकते हैं। और आईपीसी में 493, 494, 495 सेक्शंस हैं जहां पे मैरिज विदाउट गेटिंग द फर्स्ट मैरिज अनल्ड या डिवोर्स जब ना हो फर्स्ट मैरिज में, तो आप कानून में ले जाके एफआईआर भी कटवा सकते हैं। और वो शादी वैसे भी समाज माने ना माने, कानून तो नहीं मानेगा। When Dr. Madhuri Agrawal has asked that is alimony possible after divorce has been legally completed? मैडम अलेक्सा मेंटेनेंस का केस डाल सकती हैं, उसमें कोई बार नहीं है आपका। पर एज ए मैटर ऑफ लीगल स्ट्रैटेजी मैं आपको ये कहूंगा कि एलिमनी तभी डालें जब आपने डिवोर्स फाइनल करना है। इट्स बेटर स्ट्रैटेजी वाइज। Thank you, sir. One Gauri Gupta is asking that, sir, how to stop misuse of the same laws that are meant for imparting justice? For example, several incidents have been reported when people misuse 498A. मैडम देखिए, एक कहावत थी, स्वदेश फिल्म आई थी, वहाँ पे शाहरुख खान रास्ता भटक जाते हैं अपनी कार वहाँ पे, और उनको मार्कंड देशपांडे जो दूसरे एक्टर हैं मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं रास्ता भटक गया, रास्ता गलत था। तो वो इनसे एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोलते हैं रास्ते गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। तो वैसे ही मैं आपके सवाल का इसी उसमें जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, कानून अपने आप में गलत या सही नहीं है, अब्यूज करना इंसान के ऊपर है, वो कानून को कैसे ट्विस्ट करता है। कानून जैसे मैंने कहा प्रोटेक्शन के लिए बने आपकी, उसको कैसे आप ट्विस्ट करें ना ट्विस्ट करें आपकी मर्जी है। ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये एफआईआर नहीं काटेंगे, इन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया था, और ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जितनी आपको केस दागने वकील साहब दागो। तो क्लाइंट टू क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, और आपकी एजुकेशन और आपकी सोशल स्टैंडिंग कैसी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको लेकर। Thank you so much, sir. Over to Manoj ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
सर आपका निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक डिस्कशन और व्याख्यान रहा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम सभी प्रतिभागियों का, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो दे आल्सो पार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो सभी का ज्ञानवर्धन हुआ। जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या लॉज हैं और क्या उनका किस प्रकार से अनुपालन होता है या किस प्रकार से अनुपालन होना चाहिए, इन सभी विषयों पर आपने प्रकाश डाला। इसके लिए मैं अपने प्राचार्य, उड़ान सेल तथा समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत कन्या महाविद्यालय का, मैम शुक्ला जी का, और समस्त यहाँ पे जो अतिथिगण हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने रुचिपूर्वक मुझे सुना और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको आके संबोधित कर सकूं। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय कानून प्रणाली को लेके जो मैं आप तक बात रख पाया हूं, आप तक पहुंची हो, और कुछ हद तक शायद जो हमारी जुडिशरी की एक इमेज है उस पर थोड़ा सा डेंट कम हुआ हो। सर मैं बिल्कुल इंश्योर कर रही हूँ आपको, क्योंकि सच में वकील और पुलिस दो ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत बड़ा एक सोशल टैबू है हम सब के मन में, और हम इतने इंटरैक्ट नहीं कर पाते उनसे और इतना हम फ्रीली जान भी नहीं पाते। तो मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं एक वकील के थ्रू उसकी बात जानने की कोशिश, और काफी हद तक जो गैप है एक हमारे आम जन और वकीलों के बीच में, वो आपने काफी कम किया। और एवरीबॉडी इज डिमांडिंग कि हमें और लीगल ऐसे वेबिनार होने चाहिए, क्योंकि सच में ये बातें हमें नहीं पता होती। और जैसे पर्सनली भी मैं बोलूँ, जब लॉज पढ़ते हैं तो वो बहुत भारी होता है, हमारे सर के ऊपर से जाता है, उसको आपने इतने सिंपल तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमसे जुड़ें। एंड ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज एंड कमिटी, आई एम थैंकिंग यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैम सही, आपने एक एक शब्द सही कहा। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, तथा धन्यवाद उड़ान सेल की प्रभारी डॉक्टर अंशु शुक्ला मैम का, जिनके प्रयास से यह कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। साथ ही उड़ान सेल के सभी मेंबर्स, कॉलेज के सभी टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ का भी आभार। अंत में समस्त सम्मानित प्रतिभागियों का भी हृदय से आभार, जिनकी सक्रिय सहभागिता से यह कार्यशाला सफलता की ओर अग्रसर है। और अंत में उन सभी को मेरा हृदय से आभार जिन्होंने इस कार्यशाला को सफल बनाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सहयोग दिया। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच। आपको कुछ कहना है अंशु मैम? जी, कल का जो सेशन है हमारा, कल हमारा आखिरी सेशन है और वो सेशन मीडिया से रिलेटेड है। तो कल, और हमारा वैलिडिक्टरी सेशन भी कल ही है, तो कल हम थोड़े लंबे समय के लिए जुड़ेंगे। इसलिए मैं अभी आप सबसे आग्रह करती हूँ, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छे स्पीकर्स लाएं, और अच्छा अरेंजमेंट करें। तो अभी तक जैसे आपने हमारा उत्साहवर्धन किया है, आप आगे भी हमें ऐसे ही उत्साहित करते रहें। कल का सेशन 12 से 2, 12 o'clock से 2 o'clock तक जो सेशन है, वो सेशन होगा मीडिया और जेंडर से रिलेटेड। उसके बाद 2 से 3 वैलिडिक्टरी सेशन होगा हमारा। आई होप कि आप सभी हमें ज्वाइन करेंगे उस सेशन में। तो कल जो सेशन है वो थोड़ा लंबा होगा, 12 से 3, लेकिन हम सब साथ होंगे। और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं वो जो इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।